Hi Shiva, good Hi, afternoon. sir. How are you doing? Good, very good. महिमा, रश्मि, अनाया, कविता, कैसे हैं आप? सब ठीक है सर। That's good. Evening tea. Great, wonderful. We had that. Just a minute, people. Pratibha. Okay, just a minute. Some people. Oh, oh. Just a minute. It's people are. Yes. Hi sir. Hi Mahima. Glad to see you after long. Yes sir. Right, good. Pratibha is in. Okay, fine. That's great. Wonderful. Archana, 6 days. Great to have you all. So can we have the videos, please? If you're okay. Anaya, Rashmi, Pratibha, can we have the videos? Sir, later on. Okay, fine. But Actually, I'm in the kitchen making chapatis. हम में से कोई नहीं खाएगा, चिंता मत करो. Right? कम से कम पता यार तुम गोल बनाती हो कैसे बनाती हो? Okay. Good. Shiva here, Rashmi there. Okay, fine. So glad to have 5 minutes more. 2 minutes. People are joining. One more person is coming in. So welcome once again in our Feeling Friday. Oh wow, Feeling Friday. What is Feeling Friday? Feelings are there. Good. So Rashmi, red. Mahima, red. Right. I am blue. George, blue. Wow. तो colorful छाया हुआ पूरा. That's great. Am I audible to you, Rashmi? Yes sir. Pratibha audible? Mic check. Okay. That's great. Wonderful. Check 1 2 3. Check 1 2 3. Yes. Pratibha से better कौन जानता है? Check 1 2 3. Right? Broadcasting. Wonderful. Glad to have you and George. So we have some new faces today. Maybe we need to introduce a little bit about ourselves. So रश्मि कहेगी कितनी बार इंट्रोड्यूस करूं मैं अपने आप? Don't worry. You have to. 2 लाइनर बना लो अपने रट्टा लगा लो उसको. Right? करना पड़ेगा. Okay, fine. So it's another session of Feeling Friday, and we have interesting discussion today on few topics, including our short meditation video. So let's start with the introduction because there are some new faces which you may not know. So we are starting from Mahima. Mahima, 2 words from your side. Yes, क्लास में सबसे पीछे का बच्चे को सबसे पहले उठा दिए. बोलो. Hello everybody. Sir, I'm audible. Yes, you are audible. Okay. My name is Mahima Nair and I am based in Surat. I live with my family here with my parents, and I have just recently completed my master's in clinical psychology. Wonderful. And Mahima has already attended EFT workshop, and I think temperament workshop also you have attended, Mahima, or not? Sir, baki hai. Okay, baki, no issues because we do fundamentals. But Mahima is very near to me, but so because we are in lockdown, so she's so far. Okay, wonderful, great. So we have George today with us. George, can we have 2 words from you? Many of the people don't know you actually, but we want to know you. Yeah, sure. So my name is Franklin George, and I actually have been part of this group for a long time, but I've been a silent maybe audience. I've not really been very active. So I attended the FT session back in March. I think I attended the workshop, and post which I've really been in touch with Mahesh. I've been part of the group, so I do read all your comments, and I kind of enjoy some of the conversations as well. And I've pretty much kept in touch
unfortunately, I've not really been active, but I have been using EFT as well into my day-to-day habits. It's been working wonders. It's provided a lot of healing, and it's been a tool that I kind of look forward to whenever there is a need for it. I don't kind of use it as a tool, but it's become part of my living. A little bit about myself, since all of you don't know me. So I'm basically into private sector. I'm actually working for a mutual fund company, and right now I'm just between job switch. So I'm working for a new firm, but I have about 20 plus years in finance, and I've always been cautious about health. So been working out in gym. Lockdown has brought me to all these online courses. I've been doing a little bit of yoga as well. So that's in short about me. Wow, that's great. Wonderful. Great to have you, George. And George has just finished one of his yoga certifications, and we'll talk about that later also. And it's interesting phase because we also promote yoga and all. So he's now certified, right? George, you are certified to teach yoga right now. Yeah, so I'm a certified in yoga trainer. That's great. In yoga, certified in yoga trainer. Thank you so much for that. Yes, can we have Pratibha? I'm Pratibha, and I am a part of this group since very long. I am in dormant state. I got received messages of that Friday classes, and unfortunately, I could not attend because I keep on attending various courses. Last week, I have completed Understanding Bhagavad Gita in 18 days, that course, and in lockdown I try to learn more and more. That's why I could not attend these class, but this time I thought that definitely I'll skip one of my class and I will attend this session now on the regular basis, so that I could connect with you people, and I could share or receive many more information on this group, so that I could also share. And apart from that, yes, I have completed my master's in psychology, and Great. I'm a and Wonderful. And article and that's it. that's great. Pratibha is from Allahabad, right? Yes, yes. And yes, she is from an army background. That's great. Wonderful. Great. Nice to have you, Pratibha. And बाकी सब छुट्टी पे चले गए. Come on, videos on कीजिए, please. Okay. And so we have with us Sunita today, and Sunita is joining us from Dubai. Hi, Sunita. How are you? Please. Good, sir. Brief introduction yourself, please. Be Okay. with the group. Okay. Yeah, I'm Sunita, and basically I'm from Himachal, living in Dubai from last 7-8 years with my husband, and I'm working in travel industry, and what else I can say? Yeah. Wow. What else I can say, sir? Yeah. Rest. Life is good, and I'm connected with like some good people. I found some good teachers. So I'm learning and growing Wow. in life. Yeah. So That's wonderful. Thank you very much, Sunita. And I think all of us are welcoming new members here. Some of us are veterans in the group, and some people are joining new. So that's wonderful. Great, Sunita. Welcome to you all. Yes, Rashmi. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I am Rashmi from Allahabad and mother of 2 daughters. As Maheshji always mentions that we are fellow travelers. What I feel is that we are traveling on different roads, but our destination is same. Can anybody tell me what is the destination we are looking for? Oh, good question. Yes. Self-realization, to okay. realize ourselves. Good, Kavita. Yeah. Very near. To find our true self. Yeah.
या Wonderful. देखिए सबका आंसर अलग अलग हो सकता है इसमें वो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी विल पिन पॉइंट टू द सेम थिंग बट व्हाट आई फील I Yeah, हमारा yeah, जो George. रोड है no, रोड I was asking, are you asking on the spiritual level or just on the human Mhm. and social level? Which level? इट कैन बी लाइक आपको जिसमें यू आर फीलिंग कंफर्टेबल कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आवर डेस्टिनेशन इज देयर तो यू कैन ऑलवेज टेल कि हाँ यहाँ ये है इट इज नॉट दैट कि स्पिरिचुअली बोलना है या पर्सनल लेवल पर ही बोलना है व्हाट यू फील यू कैन टेल To find मतलब peace. मेरा मानना ये है कि अगर हम ये सोशल लेवल पे बात करें तो वी ऑल वांट पीस एंजॉय एंड हैप्पीनेस बट अगर Yeah. स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें क्योंकि मैं अभी योगा कर रहा था तो बीच में हमें ये बताया जाता है कि अल्टीमेटली हम समाधि की ओर जा रहे हैं तो Yes. हम इस दुनिया में क्यों आए नहीं पता है और क्या कर रहे हैं नहीं पता है सो दैट्स द आंसर Wow. सो आई ऑल्सो फील कि हमारा जो डेस्टिनेशन है व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज happiness in capital letters. Wow. Happiness in capital letters. Okay. Happiness in capital letters. That is the only word we are looking for. Mhm. Because जो ultimate aim है हमारे life का वो happiness है. Nothing else. We are looking for just happiness. हम कोई भी काम करते हैं हम happiness के लिए ही करते हैं. You're right. And we Good. look for happiness only. So I think कि हमारा जो road है it leads to one destination and that is happiness. That's why we are fellow travelers. Wow. Great. बट So वहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आप हैप्पीनेस बोल रहे हो तो वो तो हमें मिल ही रहा है आई थिंक रोज मिल ही जाता है कुछ ना कुछ अगर हम जो अचीव कर लेते हैं वी आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग एंड वंस वी गेट दैट सो वी गेट दैट हैप्पीनेस किसी को आइसक्रीम खाने से भी मिल जाती है जैसे मुझे अगर वीकेंड पे कुछ अच्छा खाना मिल जाए अच्छा तो बहुत देर से हम प्लान करते कि वीकेंड में नहीं जा सकते तो दैट इज आल्सो गिविंग अ हैप्पीनेस बट Exactly. but that's That not the permanent I can't say like that is because we achieved that but then again I'm planning for next week and next week क्या करना है तो वो तो destination नहीं हुआ in a long run, we are looking for happiness only. Whether Okay. it is temporary happiness or it can be a long journey में जब हम जा रहे हैं तो after all हम what I feel it can be different also आपके लिए कुछ और भी हो सकता है but what I feel is the ultimate destination, the ultimate aim, the ultimate goal, the ultimate purpose of our life is to lead a happy life. that's great. So I just want to intervene because both of you are on the same platform, work seeing differently. Anybody else want to jump in? I want to add something. Yes, please. देखिए हैप्पीनेस के पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं फ्यू डेज बैक आई वाज लर्निंग समथिंग इन विच दे वर टॉकिंग अबाउट कि व्हेन वी गेट दैट हैप्पीनेस देन स्टिल सम क्रेविंग स्टिल लेफ्ट एंड वी आस्क फॉर मोर लाइक कि ये दिल मांगे मोर तो जो हैप्पीनेस की हम बात करते हैं आई थिंक जो अल्टीमेट एम जो होता है हैप्पीनेस शायद वो सेल्फ रियलाइजेशन पर आकर ही खत्म होता है बिकॉज these happiness जो है this is superficial and materialistic ultimately जो सोल की क्रेविंग है जो इनर सेल्फ की क्रेविंग है वो लास्ट वाली है तभी हम वी कीप ऑन डिजायरिंग हैप्पीनेस बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि किस पॉइंट पर आकर ये हैप्पीनेस का लिमिट जो है वो कम होगा लाइट बहुत जा रही है यहाँ पर अचानक कट जाता है सब कुछ एंड हम खुश होते होते लाइट में चले गए Okay. पर हमें लगा आप हैप्पीनेस की खोज में निकल लिए ग्रुप से बाहर निकल लिए Okay. So it's wonderful that we have a discussion on happiness. The question is here, it's very interesting factor. Actually, सुनीता जो कह रही है, रश्मि जो कह रही है और प्रतिभा जो कह रही है, वो सब ठीक है because यहाँ पर कोई गलत नहीं होता. This works. This group is everybody is right. But the question is what happiness we are talking about. We are talking about something. जैसे सुनीता ने बोला आइसक्रीम खा के खुश हो जाते हैं हम या बच्चे को खिलौना मिल जाता है तो खुश हो जाता है. अगर आपको वो चीज एक बार हैप्पीनेस की डेफिनेशन सेट कर लेते हैं उसके बाद हमें आइडिया मिल जाएगा. कोई भी चीज जिसको लेने के बाद आपको जो खुशी मिलती है वो सस्टेन नहीं करती तो एक्चुअली में वो खुशी ना होके दैट इज यू कैन से मोमेंटरी एक्साइटमेंट और व्हाटएवर यू से दैट कि एक मूवी देखी तो अच्छा लगा एक बात किया तो अच्छा लगा. कोई भी चीज जो हम हैप्पीनेस की डेफिनेशन ले रहे हैं वो ये है you are feeling satisfied, you are feeling contented, you are happy from inside.
सो जब आइसक्रीम खाते हैं सुनीता तो हम अंदर से खुश होती है, लेकिन वो खुशी सिर्फ तब तक रहती है कि जब तक वो आइसक्रीम पिघल ना जाए, उसके बाद फिर वही शुरू हो Temporarily. जाती है। सो दैट इज, सो हम भी जब भी हैप्पीनेस की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाफिंग बुद्धा हम बोलते हैं, यू नो लाफिंग बुद्धा, और या हम बुद्ध को देखें, या पीस, तो जो हैप्पीनेस विद पीस है ना, वो उसको मिक्स करें तो हम उस हैप्पीनेस पे पहुंचते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो रश्मि कहना चाह रही थी, अगर मैं उसको समझना चाहूँ तो वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन वेयर वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल thing to make us happy, right? We don't require, suppose आइसक्रीम नहीं मिली तो still we are happy, because कोई बात नहीं है, आइसक्रीम में तो कुछ और खा लेंगे, समोसे खा लेंगे, राइट? यस रश्मि। सर मैं बीच में ही मैं रह गई थी, कुछ और मुझे ऐड ऑन करना था उसमें। हाँ करिए ना, मैं कौन सा कर रहा हूँ। मिसेस प्रतिभा ने जो बोला कि एक हैप्पीनेस मिलता है, फिर उसके बाद हम उससे खुश नहीं होते हैं, फिर हम आगे ढूंढते हैं, तो उसी पे मैं ये बोलना चाह रही थी कि वी आर लुकिंग फॉर द अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसके आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो वी डिड नॉट गेट हैप्पीनेस, जो चीज हमने किया और उससे हमें हैप्पीनेस नहीं मिला, एंड वी आर अगेन लुकिंग फॉर अनदर हैप्पीनेस, दैट मीन्स दैट वाज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस यू वर लुकिंग फॉर। यस, सो ये एक बहुत, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अनदर हैप्पीनेस। तो जब तक हमें वो अल्टीमेट हैप्पीनेस जब तक नहीं मिलेगा, वी विल कीप ऑन लुकिंग फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट हैप्पीनेस till we get complete bliss and complete happiness. वंडरफुल। सो सुनीता, आइसक्रीम इज गुड, वेरी गुड, बट वो आइसक्रीम ऐसी होनी चाहिए एक बार खाने के बाद मन ही ना करे उसको खाने का, एक बार खा लिया सेटिस्फाइड। नाउ शी क्लियर, बट उनका जो स्टार्ट था कि हैप्पीनेस, क्योंकि मैं भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। लाइक हम हर चीज के लिए कोई चीज करते हैं, जैसे कोई सेशन भी करते हैं तो बार बार क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि कुछ ओपन अप हो रहा है, कुछ खुशी मिल रही है, कुछ तो फिर कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, तो वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि हमें लगता है कि खुशी मिली, लेकिन और चाहिए और चाहिए। यस यस, So that is like something is right. 100%. It's like ultimate. You are also right, सुनीता, जो आपने कहा था, एक्चुअली क्या होता है जब हम डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं ना, तो समटाइम्स यू नो वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, यू कैन से दैट डिफरेंट थिंग्स, लेकिन हम सब उसको छोड़ देते हैं, ह्यूमैनिटी लेवल पे बात करते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर आप देखो, वो जब खुश होता है ना, वो अपने में खुश होता है, उसको वो खुशी, उसको वैसी खुशी है, मतलब जैसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट वाली खुशी। बहुत छोटे बच्चे को देखो, हमारे घर में बहुत छोटा बच्चा आया है, हमारी मेरी नीस का बच्चा हुआ है, वो उसको वीडियो पे दिखाती है, वो ऐसी खुश होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, अगर पेट भरा हो उसका और एंड ही इज हैप्पी। तो वो जो हैप्पीनेस की स्टेज है ना, वो एक्चुअली में वो है जब आपको कुछ नहीं चाहिए एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं का मतलब ये है मेरे को वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई मुझे प्रेज करेगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है? मुझे जब इतना इतना पैसा मेरे पास होगा तभी मेरे पास खुशी होगी, या इतनी एजुकेशन होगी तभी मेरे पास खुशी होगी। एक्चुअली आज की डेट में हम सब यहाँ बैठे हैं, ऑफ कोर्स वी आर हियर, इफ वी आर हैप्पी टुडे दैट्स द मोमेंट। लेकिन हमारे अंदर वो, जब हम ईएफटी में जाते हैं ना, तब इसका एक पॉइंट दूसरा निकाल के ले जाते हैं, बिकॉज वी हैप्पी क्यों नहीं है, बिकॉज हमें कुछ करना है अभी जिंदगी और पाना है, तभी हम हैप्पी होंगे। यानी कि अगर मेरे पास ये चीज आएगी तो मैं हैप्पी होऊंगा, दैट्स एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस, दैट इज डिपेंडेंसी, और उसी डिपेंडेंसी को तोड़ रहे हैं। सो जो रश्मि कह रही थी उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, अल्टीमेटली हम ये जा रहे हैं, वेदर वी हैव समथिंग और नॉट, वेदर द सिचुएशन, यू नो, बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, वी आर नॉट वरीड, वी से गर्मी है, हाँ आज गर्मी है बिकॉज मौसम ऐसा है, बाहर सर्दी है, आज बहुत ठंडा मौसम ऐसा है, बट वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग कैसी गर्मी है, ये हो गया वो हो गया, मौसम अच्छा है तो वाओ कितना अच्छा मौसम है, आज से बढ़िया तो कभी था ही नहीं। सो वी आर नॉट गोइंग लाइक दिस, वी आर गोइंग लाइक कि ओके दैट्स फाइन, ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको एंजॉयबल बनाते हैं, एंड दैट्स वेयर इंटरनल हैप्पीनेस कम्स। सो ऑल ऑफ यू आर राइट, and that's wonderful. So we have more people to introduce, so let's find out who are there. Medha, yes Medha, please introduce to the group briefly. Anji sir, hi everyone, my name is Medha and I'm currently residing in Singapore since the last decade, lekin I'm from Ranchi, and I work as a doctor. So abhi jab aapka ye session start hua tha sir, maine apna purse rakha and the first thing I did was to log in to the Zoom on my laptop.
तो आप जब चले गए थे वो मेरा ब्रेक टाइम था. थैंक यू फॉर दैट. Okay, that's it. Yeah, so now I think my thoughts are more collected, and I said I'm relatively new to this because I have just in the last weekend I have joined the temperament workshop, and it was an eye opener in the sense that कोई मेरे जैसा भी सोचता है या कोई मेरे जैसे भी आंसर सीख करता है, something like that, because my work from morning till evening is full of imparting empathy to people and helping out people, being a doctor. लेकिन how myself to have that internal peace, ये भी बहुत जरूरी है. तो शायद मैं इसलिए ये आंसर खोजते खोजते इस वर्कशॉप पे आई हूँ. So going back to what Rashmi and some very interesting discussion between Rashmi and Sunita, and then you added some good points, sir. So I just want to also bring forth my opinion on this, is that देखो happiness क्या होता है ना, happiness का opposite है unhappiness, ठीक है. और अगर peace का opposite ढूंढने लगो तो बहुत मुश्किल है. The word doesn't come to the mind because there is no true opposite of peace. In fact, there can be multiple ways of defining peace. For example, peace happens when you de-conflict, or when you remove conflict, you declutter and you remove the extra noises. That is peace, right? But unhappiness ka direct opposite is happiness ka direct opposite is unhappiness. So in a way, right, किसी भी चीज का जब opposite exist करता है तो वो actually वो चीजें are reactions, they are not actions. So peace is an action and it is an internal process, whereas happiness is a reaction to whatever surrounds you. So is unhappiness. तो ये शुरू में ये सवाल मुश्किल लगता है, what to choose between peace and happiness, but probably happiness is a byproduct of peace. Absolutely, Medha. That's great, wonderful answer. And if we take it like this, we are looking for happiness with peace. So that is actually the ultimate thing, because जब आप happy होते हो तो आप peace में होते ही होते हो. आप angry होके happy नहीं हो सकते, आप frustrated होके happy नहीं हो सकते, आप तो you're right. अगर आप peaceful हैं तो आप happy हो सकते हैं, लेकिन happy होके peaceful में जाते हैं या peaceful होके happy में जाते हैं, वो दोनों मिलते हैं. इसीलिए happiness with peace is the combination we are looking forward. Thank you, Medha, for that. So we are now moving to Anaya. Anaya, you are here. खाना बन गया आपका? Yes, sir. पीछे से आपकी कुकर की आवाज आ रही है? नहीं. I am in my room. Okay, that's great. Yes, Anaya, please. Hello, everyone. I am Anaya. I am a housewife and I am a mother to a 4-year-old child. I live in Indore. I recently joined sir for the temperament workshop. और एक सबसे अच्छी बात शेयर करूंगी कि पिछली बार आप लोगों का मैंने जो सेशन रिकॉर्डेड सेशन देखा फीलिंग फ्राइडे का, इट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मी. अच्छा लगा देख के. पहले ऐसा लग रहा था कि मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, ठीक है, देखेंगे चेंजेस आएंगे या नहीं, बट जब आप लोगों को देखा कि इतने सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आए हैं तो इट वाज सो इंस्पायरिंग. और उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक होप और स्ट्रांग हो गई है कि नहीं, हाँ, इफ आई विल वर्क तो मेरी भी लाइफ बेटर हो जाएगी. तो आज का सेशन बहुत क्या कहेंगे, मतलब डेस्परेट थी आज ज्वाइन करने के लिए कि फटाफट से ज्वाइन करूं और ये फ्राइडे हमेशा आता रहे और आप लोगों के साथ में ज्वाइन करूं. सर यू आर म्यूट. पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतना कुछ बोल गया, इतनी बड़ी बातें बोली, किसी ने सुने नहीं कुछ भी. अच्छी बात है, ठीक नहीं था वो. That's good, wonderful. But thank you Anaya for that, and I can see the happiness on your face coming in. That's great, wonderful. तो ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है? मेरी आ रही है क्या? बाकी सब तो म्यूट है. हाँ, शिवा. यस, शिवा के पीछे से कुछ एक्साइटिंग सी वॉइस आ रही थी. ओके. या सॉरी नहीं, अभी भी आ रही है. कहाँ से आ रही है पता नहीं. सर इज इट ओके? नहीं, that's fine. All right. ये है क्या वैसे, by the way? Some of you already know me, but so I slightly changed my introduction. Oh. I'm Dr. Medha's neighbor. Wow, that's great. I'm a biology teacher. So few Wow. things which I did not put last time when I met.
So yeah, that's I think I'm Shiva and I'm mother of 2 boys, and we are a family of 4 with 2 powerful and 2 peaceful in the house. Wow, So yes, that's we are great. learning every single day and trying out things. So that is one of the reason for me to join, and nice to meet you all. That's wonderful. That's wonderful. So a family of 2 powerful and 2 peacefuls, and lots of learning opportunities, right? Uh, Okay, that's great. So we have Geeta with us. Yes, Geeta, can we have you? Hello, hello everyone. Hi, hi, Geeta. This is Geeta. Everyone must be knowing here me. Some of you must be knowing me. I Yeah. joined earlier also. It is after a long time. But Geeta is working as a teacher and assistant professor in college for English language. But that's not my favorite language. I like Hindi, and I write in Hindi, and writing poetry and writing blogs is something which I do in my whenever I feel like to be with me. So that is something very unique thing to me. And if I talk about life and the happiness, when we search something, or I give the answer of this, when we look something out of us, that is actually brings unhappy to us. You're right. Whatever is out of you, that is, of course, nothing will value you, nothing will be there which can bring or fetch you happiness. When you step out of you means you are searching something else. You are not contented with yourself. Wonderful. And so this you have to search first, that why are you not contented? Can somebody else give you that contentment? Will give you for certain moment, will give you for time being, but that will disappear after some time. I have felt that, I know, but now I am very peaceful, use lesser words, I speak less, I speak very less, and I find myself very attached with me now, after having that all journey with tapping, meditation, and now it is very good for me that I get my answers very quickly. And this is really very no, I must say thanks to sir. He helped me a lot in this to search me. I got lost for a few months in myself, and then I found that thing. Suddenly it happens, and I must say thank you all should continue this, continue. Time will come, and that time you will find the things, the flashes come to you, and sir only told me the flashes really come to you. And some that flashes, those which are coming, sometimes they will remain forever and ever with you, and that is the called the supreme happiness you're searching for. Wow. And really, and that's going to come, and I know I have that positivity in me that it's really going to come. There are 3 layers, no, outer world, your thoughts, and then something is which is hidden. You have just put some layers above that. Those layers when go away, you'll find your real self. Wow. And that real self is really such a thing which you will say, I don't want anything apart from this, I just was in search of this thing. And you, that moment will be, you will just close eyes and find yourself in heaven, and that is the real heaven. There is no heaven which is said by people, there is heaven and hell. No, there is no heaven. That is the real heaven when you are in that moment. And I felt that, don't step out of you anywhere, do not go to the people. People will come to you when you stop in yourself. People will follow you when you start looking at them. They will not look at you, they will ignore you. When you stop looking at them and stop looking inside you, they will automatically come after you, run after you, because this is the ignorance of the world. Actually, you are not ignoring, you are going in search of you, but that is ignorance from their side, and they will, people have this, what is hidden, they just come in to search in that. So Wow. just be very much, be with you, and you will find that. I must say, you will find I am on the way, and I'll share this one day, that really I'm found that finally. Wow, that's great. So we have one Osho coming up from Geeta from that side. Oh, that's great, wonderful. So Geeta लिखती हैं, किस नाम से लिखती हैं Geeta? Actually, right, my pen name is Raza, and Geeta Sharma
blogs are there. I stopped for many days, but I write in my diary. That's continuously written with me, and I'll start blogs after when I feel that now it's that moment has come. I'll continuously write and share Wow, that. that's great. That's great. Raza ke naam se, pen name Raza ke naam se likhti Yes, Geeta. Thank you Raza. so much. Thank you so much, Geeta. And she's from Gwalior and she's joining us from Gwalior. Okay, let's have Ranjana ji with us. Ranjana ji, please introduce yourself briefly. The group. Hello, everybody. I'm a Hi, housewife in Mumbai. And before the lockdown, I used to do voluntary teaching for school children and Wow. English for adults. But Okay. right now, I'm homebound Homebound. like everybody else. जैसे लॉकडाउन खोलेगा आप चेहरे पे हैप्पीनेस देख पाएंगे रंजना जी के, राइट? शी इज वेटिंग फॉर दैट. Yes. ओके, नो इश्यूज. अभी आप अंदर जाएंगी तो आपको और खुशी मिलने वाली है. ओके, सो वी हैव हु इज लेफ्ट? Anaya, we had you. Megha. Yes, Megha, please. Want to hear from you, Megha? तुम्हारा गार्डन दिखना हर I किसी go से. with this as culture. Hello. Yes, Megha, कुछ भी नहीं आ रहा. I आवाज आवाज नहीं है और फोटो भी नहीं है. Okay. Hello. I am Hello. Megha. I'm from Yes. Faridabad. Now, is it audible? इतना ही पता है कि आप फरीदाबाद से हैं. That's it. Yes. Megha, join And again with the mainly Wi-Fi. I'm mother. Join again with the Yes. Wi-Fi. बहुत बैंडविड्थ कम है Sir. तुम्हारी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. देखा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. तो एक बार दोबारा ज्वाइन करो वाईफाई से. ओके, यस मेगा, दोबारा ज्वाइन करो. ओके, somebody left. Okay, we have forgot So somebody. I'm left. कविता, yes, मैं कहूँ कहाँ गई कविता? ओके, यस कविता, प्लीज. Good evening, everybody. I'm Kavita Good evening. Gupta from Bangalore. Yes. I'm a homemaker and a mother of a child, 10 years old boy. Yes. And I have done a bee farm. And I have done this temperament workshop from Sir in April. And Yes. it was really nice. I'm slowly shedding out my inhibitions, whatever limitation was there, I was limiting myself. So slowly I'm improving on it. दो Wonderful. चीज पे तो इम्प्रूव हो चुका है, एक चीज पे ज्यादा जैसे Okay. मैं शेयर करना चाहूंगी. Please. वो जो टू लिस्ट बनाती थी तो उसमें से थोड़े एक दो रह जाते थे तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि मैंने वो दो छोड़ दिए तो मेरा एक हफ्ता बहुत बेकार जाता था सर. Right. अभी है कि अच्छा छोड़ दिया तो कल कर लेंगे, ऐसा हो गया है. Wow, that's good. दुख That's नहीं great. होता है इतना. दुख नहीं होता है. तो परफेक्ट टेम्परामेंट का एक जो वीकनेस था उस पे काम शुरू हो गया है. वो जो दुखी होते हैं 99 ही चाहिए, उस पे नहीं बात बनती. तो कविता, दैट्स वेरी गुड दैट दुखी नहीं होते. पहली चीज तो यही है कि मैं उन पे दुखी नहीं हो रही जो बहुत ही मतलब 8 काम कर लिए उस पर खुश नहीं हो रही, 2 नहीं किए उस पर दुखी होते थे, राइट? Yes, But sir. that's good, that's wonderful, great to have this kind of realizations. Wonderful. So there is Megha again. Megha gone. Okay, again. Oh, Megha, here you are. Please, Megha, आप देखो, कोशिश करो. Where are you? Oh, she is not there again. Megha. हाँ, please. Yes, Megha, introduce yourself. Megha, can you hear me? Okay. Megha. सुन सकती हो क्या? Recent EFT and workshop participant, and I am learning new things every day about myself. Not your voice. That's great. Learning this and learning journey. ये तो लगता है स्पिरिचुअल चली गई हैं ये तो. अब तो हमारे इंसानों से बातें नहीं करती हैं तो अब किसी और लेवल पे. ओके मेगा, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी बिल्कुल भी. ओके, नो इश्यूज. आई नो दैट यू हैव गॉन. हमें छोड़ के गई मेगा, ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर हमसे. ओके, दैट्स ग्रेट. वंडरफुल. सो वी हैव ओके, सो वी नोबडी इज लेफ्ट, राइट? वंडरफुल. सो इंट्रोड्यूस किया हमने एक दूसरे को, और जैसा कि मैंने आपको पहले लिखा था, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं.
आज का जो सेशन, उसके बाद हम इस 2 मिनट के बाद हम वी आर गोइंग इनटू मेडिटेशन फॉर 15 मिनट, जो 10 to 15 मिनट हमारी वेरी शॉर्ट मेडिटेशन होती है, उसके अंदर जाएंगे एंड देन विल टॉक अबाउट अ टॉपिक आल्सो। अंडरस्टैंड करें, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसको ग्रुप नहीं बोलेंगे हम, ये इट्स अ collective consciousness, we call it, right? It's a collective consciousness. We are here with respect to humanity. सबसे पहली बात, we are here with connection with humanity. So जो फीलिंग फ्राइडे के अंदर नीचे अपने लिखा होगा वी आर सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, तो वी आर सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी। सबसे पहले बात हम ह्यूमैनिटी की करते हैं, उसके बाद दूसरी बात करेंगे, वी आर ऑल ह्यूमंस। सो ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पर हम ह्यूमन लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। कल अगर आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं, वेयर आई एम नॉट देयर, देन यू आर अगेन टॉकिंग ऑन द सेम लेवल। maybe we are talking different ways. For example, somebody is talking with happiness, somebody is talking about peace, but actually में जैसा रश्मि ने कहा कि हम सबकी अगर बात करें, वर्ड्स को हटा दें, डेफिनेशन को हटा दें, तो हम जा एक ही दिशा में रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन, जो अभी गीता बोल रही थी। सो दैट इज गोइंग इनसाइड आउट, पहले हम अंदर जा रहे हैं। टेम्परामेंट पुट्स यू इनसाइड, इट गिव्स यू द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर टोटली सेम। सो किसी भी कल बात हो रही थी किसी से कि जो हम सोचते हैं टेम्परामेंट को, उससे कहीं गहरा है। एम्पैथी जो वर्ड है, जिसमें हम सबको एक जैसा देखते हैं, वो मैंने टेम्परामेंट से ज्यादा कहीं नहीं देखा, बिकॉज इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब एक जैसे हो जाते हैं। एक क्रिश्चियन पावरफुल इज द सेम एज मुस्लिम पावरफुल, एंड हिंदू पीसफुल इज द सेम एज सिख पीसफुल। सो वो जो टेम्परामेंट है ना, वो चीज कलर से, वो चीज आपके लैंग्वेज से, वो कंट्री से बाहर है, तो वो एक तरह से ह्यूमन लेवल पे हम लोग काम करते हैं सीधा। उसके बाद हम इमोशन लेवल पे आते हैं, जहां पर हम अपनी इमोशंस की बात करते हैं। ये दोनों फंडामेंटल है। बार बार मैं जो रिपीट कर रहा हूँ वो आपसे, ये दीज आर टू फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन नेचर। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक? चेक का सिंपल एक तरीका है, कितनी भी नॉलेज हमारे पास आ जाए, कितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, अगर हमारे अंदर फियर है, अगर हमारे अंदर जेलिसी है, अगर हमारे अंदर कंपटीशन की भावना है, या हमारे अंदर किसी को ऊंचा नीचे की भावना आती है, या जेलिसी, व्हाटएवर, अगर इसमें से कोई भी फीलिंग हमारे अंदर है, तो स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन, हमें अपने ऊपर काम करना है। तो हम चेक कैसे करते हैं? हमारे सामने कोई बंदा आया, उसने कुछ बोला और हम उससे एग्री नहीं करते, देन हाउ वी हैंडल दैट एंड आवरसेल्फ, दैट इज आवर बेस्ट चेक। वो चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, चाहे आपके फादर इन लॉ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, या आपके दूसरे लोग हो, अगर मेरे से कोई एग्री नहीं करता है, तो मेरा रिएक्शन क्या होता है, दैट शोज वेयर आई एम। बिकॉज बाकी सब बातें जो है ना, वो धरी की धरी रह जाती हैं। जब आप बोलते हो मैं तो पूरे शास्त्रों का ज्ञाता हूं, लेकिन मेरे से अगर एग्री नहीं करते ना, तो यू कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, वो सब खत्म हो जाएगा। सो अगर क्योंकि इसका मतलब है मैं बीच में आ गया, वो मैं को हटा रहे हैं यहाँ से, मैं बीच में नहीं है, हम सबको पता हम कहाँ जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो अगर आप इस ग्रुप में बने रहेंगे, तो वी विल रीच टू दैट पॉइंट जो जॉर्ज बात कर रहे थे कि मैं स्पिरिचुअल की बात करूं या ह्यूमन की बात करूं। एक्चुअली में रास्ता वहीं जा रहा है, लेकिन ये मिला कि ह्यूमन, हम जो नॉर्मल ह्यूमन है और स्पिरिचुअल के बीच का जो गैप है ना, उसमें पुल है, उस पुल को पार करना जरूरी है। कई लोग हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं इधर से इधर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना बीच का, आप तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते हो। तो वो हेलीकॉप्टर से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां जाके उनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है, बिकॉज वहां पर जो लोग हैं उनसे बनती नहीं है उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, फेलो ट्रेवलर है। हो सकता है हम लोग इसी पे हैं सारे, वी आर ऑल ऑन दिस ब्रिज, हिलता है डुलता है ब्रिज, लेकिन हम सब इसके ऊपर है, बिकॉज वेयर वी आर रीचिंग ना, वहां पर ये फीलिंग्स नहीं है। नो हेट्रेड, फियर, एंगर, जेलसी, जो भी हम नेगेटिव अनरिजॉल्व्ड इमोशंस की बात करते हैं, वो नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा नहीं है का मतलब है आपके अंदर आती नहीं है, मेरा कहने का मतलब है आपको फील होता है, बट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। आप अफेक्ट नहीं होते उससे, और ना ही आप सामने वाले को नीचा ऊंचा करते हो। तो दैट्स वेयर वी आर गोइंग एक्चुअली। सो वहीं पर जाके क्या मिलता है, जब आप इस तरह की बात करते हो, आपके सामने कोई बंदा आता है, वो आपसे कुछ बोलता है जो आपको एग्री नहीं करता, आप कहते हो आई अंडरस्टैंड, द लैंग्वेज इज चेंज नाउ, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, एंड दैट इमोशनल चार्ज वहीं पर खत्म हो जाता है, बिकॉज नाउ यू रियली अंडरस्टैंड हाउ ही फील, बिकॉज
ही इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट वे, डिफरेंट facet. तो ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं हम. कैसे वाले चेंज कर रहे हैं? आई हेट, हम चेंज कर रहे हैं. हम चेंज क्या कर रहे हैं? मे बी आई डोंट नो व्हाट इज देयर, मे बी आई डोंट नो व्हाट दैट फील्स लाइक, मे बी आई डोंट नो व्हाट यू, मे बी आई एम ट्राइंग टू डू दैट. सो वी आर चेंजिंग दोज वर्ड्स, एंड दोज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम एम्पैथी. वी आर प्रोवाइडिंग एम्पैथी फॉर पीपल. सो मे बी कई बार ऐसा लगेगा आपको, जो खास तौर पे जो लोग हैं, जैसे कि मैं आज सुनीता यहाँ पर हैं क्या? यस, सुनीता गॉन? यस, शी इज नॉट. सो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि घर में सबसे डिफिकल्ट पर्सनैलिटी जो आपके साथ जिसकी नहीं बनती, सबसे डिफिकल्ट पर्सनैलिटी, उसको उठाइए एंड लेट्स वर्क ऑन इट. उस पे काम करते हैं. सो हम आसानी वाली चीजें नहीं उठाएंगे कि ठीक है जी मैं तो पहले से बेटर हो गया हूँ, मैं तो पहले से बेटर था, उससे थोड़ा सा और बेटर हो गया हूँ. दैट नॉट लाइक दैट. जो सबसे डिफिकल्ट पर्सनैलिटी है, सबसे जो आपके साथ जिसकी नहीं बनती है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे आपकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कुछ भी है, आप वहां पर अपने आप को चेक कर सकते हैं कि एम आई इन द राइट डायरेक्शन. एंड दैट इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. दैट इज नॉट अबाउट थिंग्स, अबाउट हाउ एम आई रिएक्टिंग, how am I being affected, how my emotional charge is right now. That is the ultimate truth. Oh yes, you're right, feel guilty and we regret. Wonderful. ये भी चीजें हैं जो नेगेटिव इमोशन का बहुत बड़ा पार्ट है, एंड दिस इज अ ह्यूज पार्ट. रिग्रेट और ये चीजें बहुत बड़ा पार्ट है हमारी नेगेटिव न्यूज का. और ये सब चीजें जब हमको अफेक्ट करना बंद कर देती हैं, इन द सेंस गुस्सा मुझे भी आता है, गुस्सा आपको भी आता है. द क्वेश्चन इज किस बात पे आता है और कितनी देर तक रहता है. आज अगर कुछ काम हुआ, मेरी और वाइफ के बीच में बात हुई और उन्होंने कुछ कहा, मुझे आएगा. पहले क्या होता था, महीनों चलता था. आई एम अ परफेक्ट पीसफुल एंड शी इज अ पावरफुल पॉपुलर. महीनों चल रहा है बिकॉज मैं चुप करके बैठा हूँ और वो बोले जा रही है, बोलते क्यों नहीं. और मुझे पता जितना बोलेंगे उतना मैं अंदर घुसता जाऊंगा. इट इज, मेरे को पता वो समझती नहीं, मैं बोलूंगा समझेंगे नहीं, मैंने तो अज्यूम कर लिया. एंड दैट गोज फॉर लॉन्ग. But now what happens? We still have, husband wife की नोक झोंक होती है, but अब वो रियली में नोक झोंक ही है. It's not fights. It's not विचारों की फाइट नहीं, वो सिर्फ उस समय की फाइट. तो ये चेंजेस जो है ना, ये चेंजेस आएंगे और उस दिशा की तरफ हम लोग चल रहे हैं. So our time has come. What we are doing right now, and after that we'll take a small topic for that, and we have something from Rashmi today. She's going to share with us a small part of her poetry also today. So we have meditation for next 10 to 15 minutes, a brief meditation which will help us to ground. So are we ready for that? And if you can open your cameras, you're wonderful. If you can't, then that's wonderful also, because we are doing that. Sit very, very comfortably, as comfortably you are. And होगा क्या मेडिटेशन में? इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन. इट्स नॉट मेडिटेशन, बेसिकली इट्स अ रिलैक्सेशन पोजीशन. और हम लोग हार्ट पे फोकस करके मेडिटेशन करेंगे. और उसके बाद लास्ट की जो 3 मिनट बच जाएंगे, मैं आपको 3 मिनट पहले एक छोटा सा वो दूंगा, अनाउंसमेंट दूंगा 3 मिनट पहले, सो दैट आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन में वापस आ जाए. तो आर वी रेडी? मैं टाइमर लगा देता हूँ. Stop watch. Okay, so I am just putting this off. Recording. Sometime me and my wife jokes around कि पता लगे मेडिटेशन में एक आध बंदा पीछे रह गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा. Sometimes she goes so deep कि मुझे रस्सी डाल के निकालना पड़ता है बाहर, कुएं में चली जाती है. Okay, that's wonderful. So that is the shortest form of meditation. I have developed, including the दो तरह की इसमें चीजें हैं. एक रिलैक्सेशन मेडिटेशन को इकट्ठा कर दिया है, बट अगर आप देखें तो हम लोग सिर्फ एक्चुअली में 3 मिनट ही मेडिटेटिव स्टेज में रहे हैं. बाकी सब टाइम तो हम लोग रिलैक्सेशन में रहे थे. सो जिन्होंने पहली बार इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, स्पेशली सुनीता, कविता आपने बहुत दिनों बाद किया, गीता आपने मेडिटेशन भी यहाँ पहली बार किया इसमें सेशन में. हाउ यू वांट टू शेयर समथिंग? व्हाट योर एक्सपीरियंस विद दिस शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, सुनीता? It's very nice. I can just say I can connect, but बीच में मुझे ऐसे लग रहा था इतनी छोटी सी मेडिटेशन थी, लेकिन वो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाई, और बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा ना हिल रही थी. तो
Yes, yes, yes. ये जानबूझ के some force is coming, like ऐसे हो रहा था कि जैसे कुछ force. Yes, so this is जानबूझ के छोटी रखी हुई है because now we are grooming ourselves because we are going to have a bigger meditation soon. गीता कैसा रहा आपका? How was it? You are mute पे है. Muted. Unmute कीजिए. Yes. शॉर्ट था लेकिन काफी अच्छा था और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन तभी हो सकता है जब थॉट्स बिल्कुल अपने बाहर ही हों और अभी यहाँ पर तो बिल्कुल थॉट्स नहीं थे, बिल्कुल वी वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस सेशन, तो थॉट्स वर नॉट देयर। और जब हम बैठते हैं तो सबसे ज्यादा थॉट्स उसी वक्त आते हैं जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। सब लगता है कि सब उसी का वेट कर रहे होते हैं। सब थॉट्स वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही मेडिटेशन में बैठेगा उसके दिमाग में आएगा। एक कहानी सुनिए ना आपने, जिसमें एक आदमी जाता है कि मुझे ना बाबा जी मुझे बताओ रहस्य क्या है इसका, तो बाबा जी बोलते हैं इसका रहस्य कुछ नहीं है, बैठो आराम से मेडिटेशन में चले जाओ, बहुत यू विल गेट द अल्टीमेट थिंग। लेकिन ध्यान रखना पीले रंग के बंदर नहीं आने चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तो पीले बंदर कैसे आएंगे? अब जैसे वो बैठता है पीले बंदर आ जाते हैं। नो, एवरीवेयर पीले बंदर होते हैं। दैट शोज कि जिस चीज को हम रेजिस्ट करते हैं वो परसिस्ट करते हैं। थॉट्स को हम डरते हैं तो वो आते हैं। एंड नाउ दिस छोटी सी जो चीज है ना, ये जो छोटा पार्ट है ना इसका, ये पार्ट ये है कि यू आर कस्टम नाउ, ग्रूम हो रहे हो आप। इससे जो लोग आगे जाना चाहेंगे दे विल गो इन द मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन जो पार्ट है ना उसकी स्टार्टिंग बहुत छोटे से होती है। बिकॉज मेडिटेशन में कुछ करना नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है कुछ नहीं करना होता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कुछ नहीं करना है। अच्छा जॉर्ज टेम्परमेंट, अगर जॉर्ज का दूसरा अगर ये स्पिरिचुअल हाई नहीं होते तो देश से कुछ नहीं करना है, ये तो सबसे वेस्टेज ऑफ टाइम है, दिस इज अनप्रोडक्टिव। कैसे हो सकता है? शिवा यहाँ पर है क्या? नहीं है। शिवा यहाँ होती तो पावरफुल टेम्परमेंट ऐसे करते हैं। वेल, एनीबॉडी वांट टू शेयर? मेधा, आपने पहली बार ज्वाइन किया है मेडिटेशन भी, यहाँ पर पहली बार किया, हाउ इज योर फीलिंग? सर ऑनेस्टली मैंने मेडिटेशन पहली बार किया है। मैं दूसरी तरह से अपने आप को सेल्फ अवेयर करती हूँ, यू नो, लाइक आर्ट और लाइक सिंगिंग, देयर आर फ्यू थिंग्स, बट I think this sort of meditation I've done for the first time. It was very difficult. My thoughts were going crazy. It was very difficult to not think. But there were few flashes only, I would say, seconds maybe, जब वो थोड़ा सा नहीं think वाले, nothing या blank वाली stage में थी, and it was very short, but I can't मतलब इससे बेहतर 3 मिनट और कोई spend नहीं हो सकता है, ये भी है। Yes, you're right. So जो 3 मिनट अगर कोई पूछेगा तो वो लोग हंसेंगे, 3 मिनट की मेडिटेशन होती है, लेकिन 3 मिनट की मेडिटेशन का मतलब है आपकी जर्नी शुरू हो गई है। कविता, how was your feeling? This is your second time or first time? First time, sir. So it was, मैं meditate करती हूँ, तो वो 3 मिनट में there were few thoughts, very few thoughts. नहीं तो वो meditation के समय में बहुत thoughts रहते हैं, तो मैं यहाँ कम हो गया। हाँ, No issue. this time बहुत कम thoughts थे. It was very relaxing and peaceful. Good. Anaya, what about you? वेरी रिलैक्सिंग। थॉट्स तो बहुत सारे आ रहे थे, अभी स्टार्टिंग है, स्ट्रेस इतना सारा है तो, पर इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। That's good, wonderful. So Megha, Rashmi, Pratibha, you want to share something because you are regular meditators for 3-minute meditators जिसे बोलते हैं ना, ये नया नाम दिया है 3-minute meditators, वो हम लोग ऑलरेडी हैं। So I hope you want to share something with the group. एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि शायद हम इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में भूल ही गए हैं, मतलब पीस फील हुआ, मतलब यही तो चाहिए एक्चुअली। 3 मिनट का ही सही, लेकिन चलो अच्छी बात है। 3 मिनट से स्टार्ट करते हैं, राइट? यस, दिस ट्रायो, रश्मि, प्रतिभा, यू वांट टू शेयर समथिंग? Mahesh ji, may I? Yeah, please, Pratibha. Actually, obviously that everybody suffers that thought phenomena and it prevails so badly कि बहुत disturbance होता है. But generally I feel that heaviness in the body. But वो उस तरीके का feel आता है that body is going in that trance, that spin is there, that energy is there, and this time I don't know it is correct or not, but in the last
जो आपका 30 सेकंड 3 मिनट्स जो लास्ट था, लास्ट वाला पार्ट, इन दैट I could feel that conversation between my soul and my that materialistic body. That my mind was conversing with my soul, and it was a different experience. You're right. Okay. You're right. तो It is there. It तो क्या happens. बातचीत थी? कुछ बातचीत बताओगे? वो सीक्रेट क्या बोल रही थी तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सोल से? कुछ सीक्रेट निकल के आया? I was like my that conscious was talking to that subconscious that matlab, are you happy with me with this body? Wow. Good conversation. I was getting reply. Obviously हो सकता है कि वो हमारे ही सबकॉन्शियस से निकल कर आता है. I don't know what is that thing, but I could get reply and that was a nice conversation. And I understand. शिवा, मैं समझ सकता हूँ. जॉर्ज, आपका यहाँ पर इस ग्रुप में पहली बार था हमारे साथ. बहुत छोटा सा मेडिटेशन. You are already, I think, a meditator. George, are you there? Yes. Yeah, I'm here. So you already do meditation. This is the shortest form of meditation you have ever heard of or ever did. I think 3 minutes meditation. You can say that. But how was it? It's a good experience. I mean, I really enjoy meditation, and like it said, I've been doing meditation for last couple of months and have seen the longest version of 8 hours as well. So this is good. This is really nice. In fact, meditation is one of the most difficult things because the human mind is monkey mind and it's very difficult. Like you said, if you say not to look at apple, then we are only going to imagine and look at apple. So it's just about achieving you just be clear of thoughts and emotion and be calm. So I think everybody here was calm, which is great, and that's the first step. So which is really nice. I enjoyed it. I mean, I enjoy all forms of meditation, short or long. Absolutely. This is good. George, the aim is only one thing, that this 3-minute meditation can be done by anybody. So चाहे यहाँ पर कोई भी टेम्परामेंट होगा, उसकी स्टार्टिंग जो है ना यहाँ से हो सकती है. अब क्या होगा, अगर उसको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर फर्क मिलता है तो he can continue with the 3-minute meditation because 3 minutes is nothing, and he can go for long, like you can go for 8 hours. But कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है. इसलिए इस सेशन में हम उसको इतना छोटा रखते हैं ताकि किसी को भी एक एक्सपीरियंस, तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो कर नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा ये है क्या. इतना भागता है दिमाग, सिर्फ 3 मिनट के लिए भी रुक गया तो क्या क्या हो सकता है. अगर उसको ये समझ में आ जाता है तो वो कैन गो फॉरवर्ड. So that's wonderful. Thank you for sharing your views. Okay, now, so we are done with the meditation, and we have Rashmi has something for us today, and after that I'll be sharing with you that the small thing what we are going to do, not a topic but only 5 minutes thing with you. Very interesting thing I have with me, which may be you may know it, but I think we are going systematically on that, and that's a wonderful thing I will share with you. So Rashmi, you have something for us, so just stage is yours, please. Okay. As I said at the early stage that, just a minute. Yeah. So happiness is the topic. अगर हम ऐसे मान के चले आज के लिए, तो I have something for the group. Okay. Group से related है. I have jotted down few lines which I felt कि सबके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा अभी. At the pandemic है, so you must be thinking कि आज हम जिससे बात कर रहे हैं कल क्या शायद उससे बात कर पाएंगे. So ये जो insecurity है within us, सबके मन में है. Somebody is verbal, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं. somebody is not that expressive, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. वो भी ऐसे फीलिंग से जा रहे हैं. They are going through this feeling. Right. So I have jotted down few lines about that. Okay, please go ahead. It says happiness, खुशियाँ. खुदा का करम है, खुदा का करम है कि हम फिर से मिल रहे हैं. जाने पहचाने चेहरे खुशियां बटोर रहे हैं. ऐसे महफिल की हम सबको है जरूरत, खुशियां बांट कर हम अमीर हो रहे हैं.
ऐसे महफिल की हम सबको है जरूरत, खुशियां बांट कर हम अमीर हो रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, हम सफर बन एक दूसरे का हम जोली बन रहे हैं, खुदा का करम है कि हम फिर से मिल रहे हैं, आगे चलकर यह रिश्ता घनिष्ठ हो जाएगा, एक पल भी न बिछड़े ऐसा मुकाम आएगा, इस महफिल की बात ही अनोखी है। यहाँ मैंने सूत्रधार जो है महेश जी के लिए लिखा है। सूत्रधार ने माला है पिरोया, इसकी कीमत न पूछो, सूत्रधार ने माला है पिरोया, इसकी कीमत न पूछो, हर एक मोती अनमोल है, खुदा का करम है कि हम फिर से मिल रहे, राही बनकर एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं, भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वालामुखी है, जो मैंने बोला कि फीलिंग्स अंदर हैं, जो somebody is expressive एक्सप्रेस कर रहा है, कोई एक्सप्रेसिव नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ज्वालामुखी है जो उबल रहा, भाप बनकर उड़ जाए, हम सबके चेहरे पर एक नन्ही सी मुस्कान आ जाए, खुदा का करम है कि हम फिर से मिल रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे खुशियां बटोर रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे खुशियां बटोर रहे हैं। Wow. Wow, Beautiful, that's great. beautiful. That's good. Beautiful. And it is so, connected with the things what we are doing. So, सूत्रधार के लिए जो तुमने भी कहा माला पिरो रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं मैं आपको, बड़ी अच्छी बात, एक्चुअली में देखा जाए तो माला को अगर आप देखें ना तो उसमें कोई भी मोती सूत्रधार नहीं होता है, देखा जाए तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, इट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर इट एंड्स, कहाँ खत्म होती है कहाँ शुरू होती है ये पता नहीं लगता है, एंड दैट्स वेयर आपने जो क्लिक कर दिया वो ये कि it's completely circle. We don't know where we are starting, we don't know where we are ending. What we are finding is it's a complete form of people who are here. ये एक अपने में एक collected consciousness है. And Rashmi, thank you so much for giving this, very timely and relevant thing to us in your own language. And now we have one more person with us who want to share something with us. And are we ready for that? Yes. Let's have Pratibha. Pratibha want to share something with us. Let's Pratibha. थैंक यू महेश जी। एक्चुअली रश्मि की ही बात पर इसमें एक एड ऑन है। कुछ दिन पहले मैंने लिखा कि बात सही है कि पेंडेमिक है एंड वी आर सो अनसर्टेन, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एंड इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल माइटी की हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं, दैट वी आर टुगेदर, वी कैन सी ईच अदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर। ये लिखा है मैंने, जिन्होंने जैसे कुछ किसी ने किसी अपने को खो दिया है, या ये एक मैसेज कन्वेइंग भी हो सकता है कि हम अभी भी मतलब अवेयर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति ना आए लेटर ऑन कि हमें इस तरीके का रिग्रेट हो। तो इट इज लाइक, अब तुम मेरी स्मृतियों में ही शेष हो, जानती हो तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं है। जब तुम थी तो तुम्हें नजरअंदाज करता था, सोचता था इसका कहीं ठिकाना कहाँ, इसका वजूद तो मुझसे ही है, इसको है जाना कहाँ। सुबह की शुरुआत से लेकर शाम ढलने तक तुम्हारी आवाज का शोर सुनता था, तुम्हारी नाराजगी थी तो कभी शिकायतें, पर तुमको तो मैं हमेशा दरकिनार करता था। तुम पर मेरा हक था, तुम्हारी इच्छाओं पर मेरा वर्चस्व था, अपने को तुमसे अलग सर्वोपरि समझता था। सोचता था मैं अन्नदाता हूँ तुम्हारा, तुम्हारी जरूरतों का साही हूँ, पर कितना गलत था, अब एक निवाले को तरसता हूँ। तुम्हारा वजूद मेरा अभिमान नहीं था, वो तो मेरे अधिकार में था। तुम मेरे सपनों को जीती रही, पर मैं तुम्हारे सपनों को बेपरवाह ख्यालों का नाम देता था। आज तक ये समझता था तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पर तुमको मैंने अपने वजह से दूर रख खुद को अर्धनारीश्वर ना बनने दिया।
अब तुम मुझसे बहुत दूर चली गई, तुम्हारी आवाज की वो शोखी कहीं खो गई है। तरस गया हूँ उस स्पर्श को जिसमें अपनेपन का मर्म एहसास था। लौट कर आ जाओ ये कह नहीं सकता, क्योंकि अभी भी अहम में जीता हूँ। पर जान गया हूँ आज मैं किस भ्रम में जीता था। अकेला रह गया हूँ, अब समझ में आता है तुम कितनी अकेली थी, तुम्हारी शिकायत भी कितनी जायज थी। आज अकेला रह गया हूँ, चार दीवारी में कैद हो गया हूँ। अब वो अपने नहीं आते हैं जिनको तुमसे ज्यादा तवज्जो दिया। तुम्हारी मुंह पर चुप्पी के ताले लगा देता था, क्योंकि तुम्हारे शिकवों में मुझे बगावत का शोर सुनता था। जब तक महसूस नहीं किया तब तक तुम्हें दोष देता था। आज आज तुम मेरी स्मृतियों में ही शेष हो। जानती हो तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। थैंक यू। Pratibha ji, you are Very wonderful. nice, very Seriously, nice. wonderful. Thank you. Thank you. Very, Actually, very. I wrote this during this pandemic only. I think 15-20 days back. Matlab, it was everywhere, everywhere. Everybody was losing their near and dear ones, and that sadness was there. And हम मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल जाते हैं एक दूसरे को और फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट लेडी, मतलब लाइक वी आर सो बिजी इन आवर डेली लाइफ. अपने ड्रीम्स हैं, अपना करियर है, अपनी डिजायर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम रिलेशंस को कॉर्नर करते जा रहे हैं. तो आप की भी फीलिंग हो सकती है. एंड नाउ वी नीड टू गेट अवेयर कि अभी भी ये पेंडेमिक बहुत बुरा जरूर आया है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग भी लाया है. मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम वैल्यू कर पा रहे हैं रिलेशंस की, फ्रेंड्स सर्कल की. दैट जो अकेलापन कमरे में कैद होकर जो हम काट रहे हैं, घर में कैद होकर, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हर चीज कितनी इम्पोर्टेंट थी, है और रहेगी, जिसको हम इतना ज्यादा कैजुअली ले रहे थे. तो इट वाज ऑल अबाउट, इट्स नॉट रिलेटेड टू relations only, it was related to each and everything. That's it. Yes, I understand, and you can say that it is very very relatable. You women को तो relatable होगा ही, but as we talk, me and my wife always talk, तो हम लोग अब अच्छी तरह relate कर पाते हैं कि जो अभी प्रतिभा ने बोला ऐसा किसी को भी फील हो सकता है. हमने अपने चारों तरफ देखा है कि उसके जाने के बाद, किसी के पेरेंट्स के जाने के बाद या किसी के स्पाउस के जाने के बाद उसको ऐसी ही फीलिंग हुई है. सो क्यों हम जाने का वेट कर रहे हैं किसी के, क्यों हम उस चीज का वेट कर रहे हैं? समथिंग शुड हैपन. व्हाई नॉट वी वेक अप राइट नाउ एंड डू समथिंग व्हिच वी हैव नेवर डन. दैट्स व्हाई जब कभी हमारा होम असाइनमेंट होता है, होम असाइनमेंट मींस आपने कुछ करना है, तो आप बार बार आपने देखा होगा यहाँ पर हम जिक्र करते हैं अपने घर में सबसे डिफिकल्ट पर्सनैलिटी को उठाओ. उसका रीजन ही ये है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सनैलिटी फॉर यू, बट इट इज नॉट, इट इज clashes of ego, clashes of something else. but जब आप उसके साथ बना लेते हैं ना, बाकी सब चीजें आसान हो जाती हैं. तो ये जो प्रतिभा ने बोला, ये उसका एक गहरा रूप है जो बार बार एक इनडायरेक्ट वे से आपको बोला जाता है, टेम्परामेंट के वे से, कि पुट योर द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सनैलिटी इन योर होम, बिकॉज वी वांट टू हैव दैट ब्रिज. वो जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज जो है उसको बनाए उस डिफिकल्ट पर्सनैलिटी के साथ. अगर आपने वो कर लिया, उसके बाद बाकी सब चीजें आसान हो गई. So thank you so much, Pratibha. It is so touching. Really thankful for you for that. Wonderful. So the time is up. हम जाना नहीं चाहते, इस ग्रुप से निकलना नहीं चाहते, because this is a very different issue. हम जाना नहीं चाहते वहां से, but जाना पड़ेगा. So next time मैं invite कर रहा हूँ गीता को. गीता, अगर आपके पास बहुत कुछ है, मेरे को पता है बहुत कुछ है, bring it on. Right? Next Feeling Friday में अगर आप available हो तो हमारे साथ share Today I have just 4 lines. Why not? Please. Please. Today only I just shared on Facebook also. Yes, please. That is, आंसू बांधे गठरी में तप्त डगर पर चलता राही. आंसू बांधे गठरी में तप्त डगर पर चलता राही. गठरी सूखी चलते चलते, गठरी सूखी चलते चलते, पर तपन अभी भी बाकी है.
धीरे धीरे सब बदलेगा, धीरे धीरे सब बदलेगा। हाँ, सफर अभी भी बाकी है, पर सफर अभी भी बाकी है। Wow, 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 wow. Short and sweet and message. And I know we have lots of talent here. बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे कलेक्शंस आने वाले हैं इस साल के अंत तक। रश्मि तैयार हो ना? यस, क्वेश्चन मार्क। वंडरफुल। यू नो ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें अगर हम बात करते हैं और जो ये हम इस एक्सप्रेशन में लाते हैं, जैसे प्रतिभा, रश्मि और आज गीता, आप तीनों ने लिया इस चीज को अपने ऊपर हैंडल, अपने ऊपर लिया। इट्स छोटी सी चीजों में इतना कुछ कह जाती हैं ये चीजें कि गहराई में उतर जाती है। और अगर हम दोबारा सोचेंगे, और आई विल पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, so that you can see it, we can see it whenever we want, and we can enjoy that. So thank you so much, Geeta, for that small thing. Next time हम फिर मिलेंगे और उसको हम Geeta, apart from your beautiful names, thank you for showing Thank us your you, beautiful everyone. soul. Thank you. Thank you. Yes, that's great. Wonderful. Great. So Anaya, you are seeing what is happening, right? So जी सर। धीरे, तुम देख रही हो ना क्या हो रहा है? धीरे धीरे। सर मैंने एक्चुअली मैं बिफोर मैरिज लिखा करती थी, मैंने कल से स्टार्ट किया है लिखना। आई स्टार्टेड, और Okay, that's अब great. Wonderful. डेली मतलब वो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और एक हेल्प भी मिली, जो मैंने आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करी थी। Yes, yes, yes. I understand. तो Wonderful. मैंने अब जब भी मैं सोती हूँ तो लिख कर सोती हूँ। कल से स्टार्ट किया है, डेली अब Good. लिखूंगी। So people inspire people. एक तरह का वो है adage है कि people inspire people. Okay. So now with this end, I want to share with you something for next 5 minutes only, and that 5 minutes is one of the most you can say मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था। इसको मैं समझ नहीं पाया। मेरे पास ये बुक आई थी 22 जून 2013 को, आज हो गए 7-8 साल, एंड स्टिल आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट टुडे, और यू कैन से दिस टाइम, I am into it. The book's name is this, right? Power versus Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Now, इसके अंदर एक ऐसी चीज दी हुई जो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इस बुक के अंदर कुछ और भी शेयर करने वाला हूं। इसके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मीटर दिया हुआ है। यू नो मीटर, कौन से कॉन्शियसनेस लेवल कितने प्लेटफॉर्म पे आते हैं। मीटर समझते हैं? मीटर यानी कि आप गॉज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें मैं आपसे एक जस्ट शेयर करना चाहूंगा इंटरप्रिटेशन, ओके, कि उस मीटर का, ओके, यस, सी दिस लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जब हम उस स्टेज में होते हैं ना, जब उस स्टेज पे होते हैं तो हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, और ये मैंने 2013 में पढ़ी थी। उससे मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको सीधा बताऊं, 15 तक समझ नहीं आई थी, 2015। लेकिन जैसे जैसे मैं अंडरस्टैंड करता गया, वैसे वैसे मैंने को इस चीज को हिडन रूप में मैंने टेम्परामेंट वर्कशॉप और EFT वर्कशॉप के अंदर डाला है। किसी को बताया नहीं अभी तक, बट ये चीज उसके अंदर ऑलरेडी इन है। समझिए, लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लेवल नंबर फ्रॉम 0 to 1000, 0 to 1000 हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल, राइट? पहले मैं आपको 1000 बता दूं। 1000 क्या होता है इसको समझिए और फिर नीचे आएंगे। 700 to 1000 is the level of enlightenment. 700 to 1000 is a level of enlightenment. बुद्धा, महावीर, ये सब लोग जो हैं, ये सारे लोग इस लेवल के अंदर आते हैं। कहां? 700 to 1000, right? Now go back where it starts from. The level of consciousness of shame is 20. Level of consciousness of guilt is 30. Level of consciousness of apathy is 50. Grief 75. Fear 100. Desire 125. Anger 150. Pride 175. Courage 200. अब देखिए स्टार्ट हो रहा है। Courage 200, यहां से शुरुआत हुई है न्यूट्रलिटी की। 250 न्यूट्रलिटी, 200 करेज, 250 न्यूट्रलिटी। यानी जब हम न्यूट्रल पे होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल 250 पे आता है। ये चीज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वी आर, रिमेंबर दिस, मैक्सिमम पीपल आर बिलो 175,
अंडरस्टैंड दिस. आगे देखें. एनर्जी लेवल, विलिंगनेस 310, acceptance 350, temperament workshop comes here. Acceptance, right? It is based on acceptance. 350. Okay. Then reason, purpose or reason 400, love 500, right? That is the going over. Joy 540, peace 600, peace 600, and this is the last level before enlightenment. So think about this. This book is telling us something, and it is giving us. ये book ने मैंने EFT में कैसे यूज किया है. EFT में जो अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन है सारी की सारी 175 कॉन्शियसनेस लेवल से नीचे होती. And that's why we say if we have unresolved negative emotions, our consciousness level is below 175, and that is we are still not neutral, पहुंचे नहीं neutral तक, acceptance तक. And we are talking about spirituality which is 700. Understand this. ये bridge gap कौन करेगा? जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था ना कि bridging होना चाहिए, ये कौन bridge करेगा? Because ये जो 175 और 700 का bridge है, even 600 का जो peace का होता है, इसके बीच में क्या क्या आता है? Acceptance, neutrality, joy. ये सब तो एक्सपीरियंस करना बाकी है. We cannot jump from anger to peace. We have to go through all this, and that's where our temperament understanding comes at 250, acceptance. Then we go towards peace with our EFT session 350, and after that your journey, because then you go to joy, then you go to peace. So now understand all this. This book, if I can do it, but I can't dictate you or instruct you. What we are doing is we are discussing this book in the group. We are discussing this book in the book, because what I found out, it is a fundamental of, again, fundamental level where जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ बट उसके अंदर एंगर आ जाता है, तो वो 700 की बात कर रहे हैं लेकिन वो 175 से नीचे हैं. तो आप मेजर कर सकते हो उसको वेयर यू आर. अगर मुझ में भी गुस्सा आ रहा है तो आई कैन शो दैट मेरा कॉन्शियसनेस लेवल बहुत नीचे है, तो मैं अपने चारों तरफ यही फैलाऊंगा, राइट? एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है. गीता, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ. What I suggest is, if you all can buy this book from Amazon, it is something around 350 or so. If you can all buy this book and start reading it 1 page or 2 page, whatever, what we do is we will start a group reading session in our Feeling Friday, where we are discussing on each level. This will help all of us to understand that. We can have our own point of view on that, and at least whenever anybody sees that, they will understand what we are talking about. So if this proposal I am putting in front of the group, if this proposal you like, you just purchase this book, and next time when we meet, we will talk about the levels till 175, 0 to 175 के बीच में बात करेंगे. So अगर आप ये परचेज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक ग्रुप में डाल दूंगा. दैट इज पावर वर्सेस फोर्स. और ये जो कॉन्सेप्ट है ना पावर फोर्स का, ये बहुत अच्छा है. पावर और फोर्स के अंदर क्या फर्क होता है? फोर्स अंदर से आती है, पावर ऊपर से आती है. दैट विल अंडरस्टैंड दैट. बट दिस इज समथिंग व्हिच कैन चेंज द कंप्लीट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वाइब्रेशनल लेवल. एक थर्ड लेवल पे जा रहे हैं हम लोग. फिजिकल हो गया हमारा इनहेरेंट बिहेवियर, इमोशनल, देन वाइब्रेशनल लेवल पे जा रहे हैं इस बुक के साथ. सो इफ यू वांट टू, इफ you can hold on and you can be with me, just have this book and let's start a reading session from next Feeling Friday for 15 minutes and understand the basics of vibrations. Right? Yes. Yeah. Gita, you want to say something? Sir, my question is this. Some things God has given us as we are human beings. So as a protective thing, anger is also being given to us. So to what extent it is good or what extent it is harmful? Sometimes people are taking advantages of that anger and exploiting us. So if we talk about that spiritualism, then there is, let the people do whatever they are doing. You should not react. You should take that. Gita, I can understand this thing. और ये क्वेश्चन बार बार आता है. इसमें सिर्फ एक चीज को मैं डालूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा. We are not talking about
negative emotion. We are talking about unresolved negative emotion. You are absolutely right. अगर आपने EFT की इंट्रो अटेंड की है तो उसमें बताया, उसमें हम डिस्कस करते हैं 3 तरह की इमोशन हम लोग फेस करते हैं. पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी अनरिजॉल्व नेगेटिव. राइट? ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, पहली नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमें इंसान बनाती है. बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इंसान बनाती है. हमें गुस्सा आता है, हमें अगर फियर नहीं होगा ना तो मैं बिल्डिंग पे चढ़ के कूद जाऊंगा वहां से, मुझे डर ही नहीं है. आई कैन फ्लाई, यू नो, आई कैन फ्लाई एंड आई कैन डाई, आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ट्रेन. बट फियर दिया हुआ है हमें, बिकॉज ये हमें ह्यूमन बनाता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन मेक्स अस ह्यूमन. ये थर्ड इमोशन जो है ना, ये दिस मेक्स अस सिक, दिस मेक्स अस अनप्रोडक्टिव, दिस मेक्स अस लाइक, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो सारी बातें नेगेटिव इमोशन की नहीं है. ये जो कॉन्शियसनेस लेवल है, ये भी उस एंगर से नहीं है कि जब आपको किसी ने कुछ कहा और आपने आपका नेगेटिव, आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उससे आपने एंगर किया. दैट इज नॉट अबाउट दिस. दिस इज आई एम कीपिंग दैट एंगर इन माई सेल्फ, विच इज बिकमिंग अ प्रेशर कुकर. जैसे कहते हैं बैड एंगर. अब मुझे गवर्नमेंट को गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा, मुझे अपने हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, मैं निकाल नहीं पा रहा, रख रहा हूं उसको अंदर, और वो अंदर प्रेशर बन रहा है, एक दिन फटेगा. लेकिन अगर वही चीज बातचीत से निकाल दी जाए तो खत्म हो गया. यानी इमोशनल चार्ज है अगर आपकी उसके अंदर नेगेटिव इमोशन में, वो गड़बड़ है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट गीता. नेगेटिव इमोशंस आर देयर, फियर, एंगर, जेलसी, सब कुछ है और हमें चाहिए. लेकिन जब हम इससे अवेयर हो जाते हैं ना, तो मैंने, मान लीजिए मेरी और आपकी बात हुई और मैंने गुस्से से आपको कुछ कह दिया, मैं शाम को आपसे कहते हैं अब्बा कर लूंगा. अब्बा कट्टी समझते हो ना, अब्बा कट्टी, कट्टी अब्बा बोलते हैं, नहीं ऐसे करते हैं जो वटेवर. तो शाम को मैं आपसे बोलूंगा, गीता सॉरी मैंने सुबह ऐसा बोला था, आई वाज वेरी एंग्री, मैं ये बात ना मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आई थी, ये सो मैंने इससे कह दिया, सॉरी फॉर दैट. तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया. लेकिन अगर मुझे में अनरिजॉल्व एंगर है, गीता ने तो ऐसे किया था मेरे साथ पहले, अब मैंने कर दिया तो क्या होगा, क्या समझती है अपने आप को. एंड आई विल कीप ऑन लिंगरिंग इट फॉर इयर्स, एंड दैट इज मेकिंग द फस ऑल अबाउट. सो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव अनरिजॉल्व इमोशन फॉर इट ऑल. और खास तौर पे हमारे ग्रुप के अंदर, फीलिंग फ्राइडे के अंदर, या जिस इसमें वी आर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इमोशन, we are only talking about negative unresolved emotion, not negative emotion. Right, Geeta? Thank you. Yeah. This explanation is required. So thank you so much. Our time is up. जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा. So can we have all the videos up, please, so that we can say goodbye to each other, and let's meet for the next Feeling Friday again. And we have Rashmi, Pratibha with us, and Geeta will join us in sharing the things. मेघा, आपके पीछे आवाजें नहीं आ रही लेकिन पेड़ फिर भी दिखाई दे रहा है. ये तुम्हारा वॉलपेपर है कि रियल में पेड़ है? रियल है इनका, ये रियल वॉलपेपर लगता है. वेल, थैंक यू सो मच. हम अगली बार मिलते हैं. बाय द वे, कल EFT की वर्कशॉप है. अगर कोई भी आपको लगता है कि उसको जानना चाहिए, आजकल क्या है, एक पेज है उसका जो मैं लिंक शेयर कर लूंगा, उसी पेज के ऊपर इंट्रो भी है, उसके पेज के ऊपर सारी इंट्रो. आपको कुछ भी किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ अगर लगता है कि उसको हेल्प करेगी तो आप उसको वो पेज दे दीजिए. अगर वो, समझिए, हमें किसी भी इंसान को कन्विंस करके यहाँ नहीं लाना है. इवन फीलिंग फ्राइडे के अंदर, इस ग्रुप के अंदर एक चीज खास ये है, इफ यू डोंट वांट टू कम, प्लीज डोंट कम. इफ यू वांट टू लीव द ग्रुप, प्लीज लीव, बिकॉज दिस इज ए कंप्लीटली वॉलंटरी ग्रुप. हम आना चाहते हैं इसलिए आते हैं, राइट? तो जिसका समय आ गया है, जिसके अंदर वो, यू नो, ही इज रेडी, देन he will be attracted to these, we can say that souls. हम सब souls हैं, ये सब अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर अपने आप, लेकिन किसी को बना के लेके नहीं आएंगे हम यहाँ. सो अगर कोई लगता है आपको जो इस तरह हो रहा है, आप उसको बताइए कि आप इस वर्कशॉप में आए, आपको हेल्प मिलेगी, ये आप इसमें देख लें, यू कैन एंटर दैट. क्योंकि हमें पता है, उसको नहीं पता कि एक दिन जब वो यहाँ बैठा होगा इस ग्रुप के अंदर, तो उसको क्या फील हो रहा होगा, राइट? एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स कमिंग इन from your side. So thank you so much. And next time we are introducing two things. एक तो हमने introduce आज किया है कि we will be having 15 minutes of creativity. चाहे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, even if you want to sing, most welcome, because we want to hear that from you. We have a singer in our group. She is not here, but we have. तो मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा आपको, and you will be surprised to hear her voice. So if you want to do that, wonderful. And next time we are introducing the group reading session also. और अगर आप ये लोग ले सकते हैं, चाहे PDF में कॉपी ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए, I can tell you that this can change the entire gamut of our things. और आपको समझाने में और समझने में बहुत आसानी होगी. जो लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मेरा वाइब्रेशन लेवल कहाँ पर है, you will clearly understand मैं कहाँ सस्टेन कर रहा हूँ.
अब मैं सुबह उठता हूँ, शाम तक मुझे पता लग जाता है कि मैं कहाँ वाइब्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास एक पैरामीटर, मेरे को समझ में आता है मैं कहाँ वो कर रहा हूँ. So that will help, right? So let's meet next Friday. Before you sign Yes. off, right? I have a burning question जो अभी पूछना पड़ेगा मुझे. तो हाँ, तो जो अभी आपने book दिखाई and you introduced to us various consciousness levels of different people and आपने बताया कि कैसे graded है 0 to 1000. So I just want to know one thing. I am going to buy this book. I have already made up my mind. But I just want to know one thing. कि हमारा different levels of consciousness is because of our temperaments or because of our personalities? Okay. So personalities में अगर आप देखें तो हमारा temperament start होता है 250 level से, यानी जब acceptance आ जाती है. Temperament is all about acceptance. Temperament is what? Temperament is not about temperament. It's about I am okay, you are okay. Everybody in the world is coming from their own perspective. Everybody is right. That's the feeling temperament is giving us, right? Natural form में आ जाते हैं. Temperament तो बोलने की भाषा है. Actually में हम natural form में आ जाते हैं अपने. But we are तो जैसे natural form में आते हो आप acceptance mode पे आते हो, 250 level पे vibrate कर रहे होते हो. जिन लोगों को temperament पता है, जिनको ये पता है कि temperament क्या होता है, उनका vibration level automatically 250 से 200 के बीच में वेरी करना शुरू हो जाएगा, because now they are not reactive to other people's wrong things, because they see ये wrong नहीं है, because they are different. So अचानक उनका लेवल चेंज हो जाता है. तो जो पर्सनैलिटी है, जिसको मास्किंग बोलते हैं या पर्सनैलिटी, वो सारी चीजें नीचे की. सो अगर मैं कहूँ तो वो जो ये जो लेवल नीचे वाइब्रेट हो रहा है ना, ये सारा पर्सनैलिटी है, बिकॉज दे आर नॉट ओरिजिनल पीपल. एंगर ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनल एंगर में लोग घूम रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन ओरिजिनल नहीं है, हर्ट ओरिजिनल नहीं है, गिल्ट ओरिजिनल नहीं है. दीज आर ये समझ गया मैं, मेगा के पीछे से आवाज देनी शुरू हो गई. ये सब कुछ जो है ना मेधा, वो है सब कुछ पर्सनैलिटी हमारी आती है 200 से नीचे. द मोमेंट वी आर इन आवर सेल्फ, नेचर में आ जाते हैं, टेम्परामेंट के अंदर आ गए, वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स हायर लेवल्स 250. Okay. Right? And when you read it now, it's wonderful. So next time मिलते हैं एक और इंट्रोडक्शन के साथ, and let's see what we can do better. And thank you so much for being here. एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. Stay in touch with the group. Right? Bye bye. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Bye.